সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ। বন্দনা করি তাহার চরণ ধরি, ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ। আর যত শিক্ষা গুরু সবে বাঞ্ছা কল্পতরু, কৃপা করো ঘোচক বিশাল। আর যত শিক্ষা গুরু সবে বাঞ্ছা কল্পতরু, কৃপা কর ঘোচক বিশাল। রূপ সনাতন প্রভু গড়িয়া আচার্য বিভু, আর সেই ভট্ট রঘুনাথ। রূপ সনাতন প্রভু গৌরী আচার্য বিভু, আর সেই ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবন যে সংঘট, মিলে প্রভু দাস রঘুনাথ। শিব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে যে সংঘট, মিলে প্রভু দাস রঘুনাথ। গোস্বামী প্রভুর গণ আশ্রয় সেই শ্রীচরণ, অন্য মোর কিছু আশা নাই। স্বামী প্রভুর গান আশায় সেই শ্রীচরণ, অন্য মোর কিছু আশা না। তার মধ্যে যে শ্রীজি উজ্জ্বল আচার্য দীপ, দিয়াছেন চরণেতে ঠাই। তার মধ্যে যে শ্রীজি উজ্জ্বল আচার্য দীপ, দিয়াছেন চরণেতে ঠাই। আমি সে দুর্মতি অতি বিষয় ভোগেতে মতি, কৃপা করি আনিল টানিয়া। আমি সে দুর্মতি অতি বিষয় ভোগেতে মতি, কৃপা করি আনিল টানিয়া। মূর্খময়ী নিচতি শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী, কৃপা বারি দিল সে সিঞ্চিয়া। মূর্খময়ী নিচতি শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী, কৃপা বারি দিল সে সিঞ্চিয়া। পতিত পাবন প্রভু নিত্যানন্দ গৌর বিভু, শ্রী অদ্বৈত কৃপা পারবা। পতিত পাবন প্রভু নিত্যানন্দ গৌর বিভু, শ্রী অদ্বৈত কৃপা পারাবা। শ্রীবাসাদি গদাধর কৃপা কর এ কিঙ্কর, বুঝিলাম তব কৃপা সার। শিবাসাদি গদাধর বুঝি করলে কিঙ্কর, বুঝিলাম তব কৃপা সার। বৃন্দাবন রমস্থান সেবা কুঞ্জ তারনা, শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি। বৃন্দাবন রমস্থান সেবা কুঞ্জ তারনা, শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি। তাহার চরণে মুই একান্ত আশ্রয় লই, কৃপা করি কর মোরে গতি। আর চরণে মুই একান্ত আশ্রয় লই, কৃপা করি কর মোর গতি। শ্রী গীতার গান যেই তোমার চরণে থুই,
লহ মোর এই পুষ্পাঞ্জলি। গীতার গান তোমার চরণে থই, লহ মোর পুষ্পাঞ্জলি। কি জানি কি লিখি আমি, একান্ত ভরসা তুমি, যে লিখাও সেই পদ্মাবলী। লিখে আমি একান্ত ভরসা তুমি, যে লিখাও সেই পদ্মাবলী। অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব, এই মোর নিত্য কাল। অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব, এই মোর নিত্য কাল। ভকতি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে, বিমোচন এ মায়ার পার। ভকতি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে, বিমোচন এ মায়ার পার। জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ। জয় প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ, প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप मह्यं ददाति सापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, भक्ति विघ्न विनाश
ईश्वरदेव भगवान की, शिल प्रभुपाद रचित गीतार गान की, साविद गौर भक्त गौर। आज हम भगवद गीता द्वितीय अध्याय पाठ करेंगे। संजय कहिल, यह लिखा नहीं, ये लिखा है, आप साथ में बोलिए। संजय कहिल, लिखा नहीं है प्रिंटिंग। संजय कहिल, देखिया अर्जुने कृष्ण সেই অশ্রু জলে কৃপায় আবিষ্ট হয়ে ভাবিত বিকলে কৃপাময় মধুসূদন কহিল তাহারে ইতিবাক্য বন্ধু ভাবে অতি মিষ্ট স্বরে। সঞ্জয় কহিল, দেখিয়া অর্জুনে কৃষ্ণ সেই অশ্রুজল। देवी वहां पर शोक पहला अध्याय में 28-29 नंबर श्लोक से शोक वर्णन करना है। किस तरह वर्णन है श्लोक? पहला अध्याय का 28-29 नंबर श्लोक। सिदंत मम गात्राणि मुखम च परिशिष्य विभूतश्च शरीरे में रोमश्च जाए। प्रभुपाद ने वहां कहा, यद्यपि यह रोने का वर्णन नहीं है, नहीं रो रहा है, वर्णन नहीं है। प्रभुपाद कहता है यद्यपि लिखा नहीं है लेकिन आसानी से समझ सकता आंखों में आंसू है, रो रहा था। प्रभुपाद ने ना उन्हें जोर देकर कहा, यद्यपि लिखा नहीं है लेकिन हम अनुमान लगा सकते उसी टाइम अर्जुन रो रहा है। तो यह हम द्वितीय अध्याय में देखा, हाँ इधर में रोना चालू किया। देखिए अर्जुन कृष्ण সেই অশ্রু जल, वास्तव में अश्रु शब्द का अर्थ आंखों का जल है, फिर अश्रु जल भी आंखों का जल है। तो जल दोबारा शब्द आने से कोई समस्या नहीं। अश्रु शब्द का अर्थ है आंखों का जल, पानी। फिर भी अश्रु जल अर्थ तो आंखों का जल है, अर्थात रो रहा है। तो देखिए अर्जुन कृष्ण সেই अश्रु जल, अर्जुन अभी रो रहा है, अभी देख रहा है कृष्ण रो रहा है, धनुर्बाण त्याग करके रो रहा है। धन्यवाद देकर बैठा, अभी बैठ के रो रहे। कृपा आविष्ट है भावित, यह देखकर कृष्ण का मन में कृपा का उदय हो। कृपामय मधुसूदन कहिल ताहार, तखन तब कृपा मधुसूदन उनको कहा, इति वाक्य बंधु भावे अति मिष्ट। संस्कृत श्लोक क्या है उधर में? तंग तथा कृपया आविष्ट, कृपा अश्रुपूर्ण आकुल क्षण अश्रु। उसके बाद विषिदंतमिदम वाक्यम उवाच। प्रभुपाद ने यहाँ का इति वाक्य बंधु भाव अति मिष्ट स्वर, बहुत मिष्टी स्वर है। इति वाक्य बंधु भाव अति मिष्ट स्वर। बच्चा यदि 10 बजे परीक्षा है, 9 बजे मामी को बोला मामी पेट दर्द हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? बहाना, परीक्षा नहीं देना चाहते। और उसी दिन मामी से डांटेगा तो क्या करेंगे? ज्यादा रोने लगा तो और जाने नहीं, अभी ज्यादा डांटने से चलेगा नहीं, अभी वहां समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं, सब क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, सब गया तुम भी चले जाओ, कोई समस्या नहीं है। हमारे भी कभी कभी इस तरह होता था, जाओ ठीक हो जाएगा। तो यह डांटने से चलेगा नहीं स्थिति में। अभी अर्जुन रो रहा है, अभी वो डांटने से काम चलेगा। यहाँ इति वाक्य बंधु भावी, बंधु के बहुत मीठा स्वर। और यहाँ पूर्व व्याख्या करते हैं तात्पर्य में, मधुसूदन कहिल, संजय ने कृष्ण के मधुसूदन नाम रखा।
प्रभात आत्मा कहता है मधुसूदन के संबोधन करने आता है कृष्ण ने मधु नामक दत्त कहते, इसीलिए हाँ अभी अर्जुन को हृदय में जो अज्ञान रूप असुर है उसको कृष्ण ने अभी हत्या करेंगे। इसीलिए अज्ञान अज्ञता रूप असुर को हत्या करेंगे, इसीलिए यहाँ संजय चाहते कृष्ण तो करेंगे, इसीलिए कृष्ण को यहाँ पर मधुसूदन नामे संबोधन। श्री भगवान कहिलेन কিভাবে অর্জুন তুমি ঘোর যুদ্ধস্থলে অনার্যের শোকানল প্রদীপ্ত করিলে। কিভাবে কিভাবে অর্থাৎ कैसे कैसे তোমার यह कैसे आश्चर्य কিভাবে कैसे अर्जुन तुम घोर युद्धस्थल, इस तरह करुणा युद्ध स्थल में करुणा नहीं, दूसरा जगह में होता है वो अलग बात है, लेकिन घोर युद्ध स्थल में करुणा কিভাবে अर्जुन तुम घोर युद्ध स्थल है। ये घोर युद्ध स्थल में घोर शब्द का अर्थ क्या है? हाँ भीषण, जैसे घोर अंधकार घोर अंधेरा भीषण बहुत बहुत स्वाभाविक रूप में नेगेटिव बहुत को घोर बोलते हैं, घोर अंधेरा है, बहुत कुछ अच्छा कुछ हो रहा घोर वो नहीं बोलते हैं। घोर नेगेटिव कुछ बहुत को समझाने के लिए अंधेरा, घोर उज्जवल हो गया, घोर उज्जवल नहीं होता है, घोर कलिजुग कलिजुग घोर कलिजुग वैसा। तो नेगेटिव में घोर शब्द, घोर युद्ध स्थले अनार्य शोकानल प्रदीप्त। अनार्य शब्द अर्थ क्या है? जो आर्य नहीं है। आर्य शब्द को फिर अर्थ क्या है? सिविलाइज पूर्ववत क्या अनुवाद करता है? जो जीवन का मूल्यबोध जानते हैं, इसका आर्य कहते हैं। आर्य शब्द का अर्थ है जो जीवन का उद्देश्य जानते हैं, अर्थात जो शरीर आत्मा का फर्क जानते हैं, उसका कहता है आर्य। तो अभी तुम अनार्य की तरह शोकानल, शोकानल शब्द अर्थ क्या है? शोक रूप अनल। अनल क्या करते हैं? आग क्या करते हैं? जलाते हैं। तो शोक क्या करते हैं? शोक भी हृदय को जलाते हैं। तो अभी तुम जो बातें कर रहा है ये शोक अनल है, तुम्हारे हृदय को जलाएंगे, और ये शोक एक अनार्य का था। आर्य व्यक्ति इस तरह नहीं करता, प्रदीप्त कर लिया था, जला दिया। हृदय में कैसे आश्चर्य हो गया, कैसे तुम इस तरह कर सकते? अनार्य की तरह शोकानल हृदय में। और अकीर्ति असर्ग लाभ हईबे तोमार, अकीर्ति असर्ग लाभ हईबे तोमार, शिशि बंधु छाड़ो এই অযোগ্য आचार। अकीर्ति असर्ग शब्द का अर्थ क्या है? अकीर्ति असर्ग, हाँ अकीर्ति अर्थ अपमान, अकीर्ति अर्थ इसका अर्थ क्या है? अकीर्ति सम्मान नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है? अकीर्ति शब्द का तो अपमान, अकीर्ति शब्द को इस तरह नहीं, वो सम्मान नहीं मिलेगा, वो तो बात सही है, लेकिन अकीर्ति शब्द का अर्थ है अपमान। और असर्ग अर्थ, असर्ग अर्थ नरक, असर्ग अकीर्ति अर्थ अपमान और नरक, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तुम ये युद्ध नहीं करके दो चीज हो सकते, मर जाओगे नरक और जिंदा रहोगे अपमान तो दोनों मिलेगा तुमको, इधर में मिलेगा उधर में मिलेगा, दोनों मिलेगा। क्या करना चाहती है? अकीर्ति असर्ग लाभ हईबे तुम्हार, ये तुम युद्ध कर रहे हो, हाँ तुमको दो चीज मिलेगा। एक है युद्ध नहीं करना चाहता तो दो चीज मिलेगा, एक अकीर्ति मिलेगा, अपमान होगा, और असर्ग होगा, मर जाओगे तो। इस तरह युद्ध करने मर भी सकते, जिंदे भी रह सकते, और युद्ध करने भी सकते। युद्ध करने से
दोनों फायदा होगा, एक अपमान मारने से नरक, और जिंदे रहोगे तो अपमान। सी अर्थात हाँ, बहुत धिक्कार अर्थ है। सी बंधु छाड़ो ये अयोग्य आचार, ये धिक्कार है। क्या तुम ये क्या कर रहे हो इस तरह? आश्चर्य हो गया, क्या कर रहे थे? सी बंधु छाड़ो ये अयोग्य आचार। अयोग्य आचार अर्थात तुम्हारे लिए ये आचरण शोभा नहीं देते हैं। अयोग्य, योग्य आचार, योग्य आचार अर्थात जो करना चाहिए, अयोग्य आचार जो करना नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए शोभा नहीं देते इस तरह आचरण कर। नपुंसक नह पार्थ एक ही व्यवहार, योग्य नहे ए कार्य बंधु जे आमार। नपुंसक नह पार्थ एक ही व्यवहार। नपुंसक अर्थात, नपुंसक अर्थात हाँ, नपुंसक ये पुरुष कितना प्रकार होता है? कितना व्याकरण में कितना प्रकार होता है? लिंगो कितना प्रकार होता है? सब इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, अभी हिंदी बोल के। लिंगो कितना प्रकार होता है? इंग्लिश पढ़े ना इसलिए 3 प्रकार। हाँ, हिंदी संस्कृत बांग्ला किसने पढ़ा? कितना प्रकार लिंग होता है? हाँ हाँ, सब भूल गया। बांग्ला 4 प्रकार होता है, तो संस्कृत 4 प्रकार क्या क्या है? पुंगलिंग, स्त्रीलिंग, क्लीबलिंग, उभयलिंग। आप लोग इंग्लिश पढ़ा ना, इंग्लिश में उभयलिंग है नहीं, इसीलिए 3 बोलना है। 4 प्रकार। क्लीबलिंग था नपुंसक। नपुंसक ना पुरुष ना स्त्री। तो किसने कहता है तुम तो नपुंसक नहीं हो? किसी को इस तरह बात बोलेगा तुम तो नपुंसक नहीं हो, इसका अर्थ क्या है? तुम आचरण नपुंसक की तरह कर रहे हो। किसी को बोला अरे तुम तो नपुंसक नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? अर्थात तुम आचरण नपुंसक की तरह कर रहे हो। तो बताओ, जो अर्जुन है 150 साल उम्र है, नाती है, सब कुछ है, सारा दुनिया में उनके इतना सम्मान है, और किसने बोला तुम तो नपुंसक नहीं हो? जिसको संतान है, नाती है, उनको बोला नपुंसक का आचरण कर रहे हो। तो नपुंसक नह पार्थ एक ही व्यवहार। हे अर्जुन, क्या आचरण कर रहे? पार्थ शब्द बताए क्यों? पार्थ समझा ना, देखो ठीक है तुम्हारे बदल, लेकिन मेरा 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 बुआ का लड़का तुम मुझको अपमान करना चाहते हो। पार्थ तुम है मेरा बुआ का, कुंती का लड़का, पृथा का लड़का। योग्य न है एक कार्य बंधु जी हमारा, मेरा बंधु है, मेरा बुआ का लड़का है, तुम तो डूबोगे मुझको डुबाओगे, जो कृष्ण का भाई। तो तुमको गाली देगा, मुझको गाली देगा, वो जो कृष्ण का भाई, इस तरह देखो। तो योग्य न है एक कार्य बंधु जी हमारा, मेरा बंधु का तुमको ये काम नहीं करना चाहिए। हृदय दौर्बल्य এই নিশ্চয় জানিবে, ছাড়ো এই করযুদ্ধ যদি শত্রুকে মারিবে। हृदय दौर्बल्य, ये जे तुम बारे बारे बातें कर रहा है, मैं मानना नहीं चाहता हूँ, पाप होगा। वास्तव में ये बात तुमका झूठ बात है। ये तुमको लग रहा है तुम महान व्यक्ति हो गया, बारे बारे बातें कर रहे हो, वास्तव में ये तुमका हृदय का दुर्बलता है। जिस तरह कोई किसी को माथा खराब होता है, वो समझता है मेरा माथा खराब होगा, हाँ कैसे? दूसरा आदमी को मान ले, देखो उनको बोलेगा तो माथा खराब होगा, वो समझेगा नहीं, वो डॉक्टर को दूसरा भाषा में समझाना पड़ेगा ना, कोई इस तरह होता है, तो कोई वो स्वीकार करेगा नहीं। तो किसी को हृदय दुर्बलता, वो समझेगा मेरा हृदय का दुर्बलता है? नहीं, वो नहीं समझेगा हृदय, ये दूसरा को दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये टेम्परेचर है, बुखार है 104 डिग्री सेल्सियस, ये हाथ में जितना तापमान, ये हाथ में, तो ये हाथ से हाथ देखेंगे, कैसे पता चलेगा टेम्परेचर कितना है? दूसरा जिसकी टेम्परेचर वो देखेगा ना, पता चलेगा टेम्परेचर। तो हृदय दुर्बल रहता है, जिसका हृदय दुर्बल है उनको कैसे पता चलेगा उनके हृदय दुर्बल?
वो तो बड़े बड़े लेक्चर दे रहा है, नहीं नहीं करेंगे, ये होगा, यही करेंगे, ये होगा। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, ये बड़े बड़े बात नहीं है, ये तुम्हारे हृदय का दुर्बलता है। हृदय दुर्बल यही निश्चय जानिबे, निश्चय जानो, तुम जो युद्ध नहीं करना चाहते हो ये तुम्हारा महानुभावता नहीं है, ये तुम्हारे हृदय का दुर्बल। ছাড়ো इसका फालतू हृदय दुर्बल को छोड़ दो, करो युद्ध, यदि शत्रु के मारने, शत्रु को मारने के लिए ये दुर्बल छोड़ दो। अभी अर्जुन सुन के क्या बोलेंगे, आपको कोई बोलेंगे आप पागल हो गए, आप क्या मानोगे बात को? नहीं, क्या बोल रहे हैं तुम पागल है। किसी को आगे बोला तुम्हारी हृदय दुर्बल है, क्या दुर्बल है, कैसे, तो कुछ प्रोटेस्ट करोगे, क्या दुर्बल है तुम्हारे? तो अर्जुन यह उस तरह नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, क्या हमारा दुर्बलता है? मैं मेरा गुरु के नहीं मारना चाहता हूं, ये क्या दुर्बलता क्या है? कोई शत्रु को नहीं मारते, ठीक है, वो बड़े आदमी देखा डर के मारे, दुर्बलता से। मैं भीष्मदेव मेरा दादाजी को नहीं मानना चाहता हूं, द्रोणाचार्य गुरु मानना नहीं चाहता हूं, मेरा सम्मान के लिए बोल रहा हूं, और क्या आप दुर्बलता बोल रहे हैं? अर्जुन कहिल मधुसूदन की आज्ञा करो तुमी मोरे, भीष्म द्रोण गुरुजन तारे मारिबारे। यह भी बता दे मधुसूदन, मधुसूदन अर्थ क्यों? मधु नामक शत्रु को हत्या किया, तो आप मधुसूदन है, आप शत्रु को हत्या करते हैं, और हमको गुरु को मारने के लिए बोला गुरुसूदन बोलना चाहते हैं आपको। आपके सन्धि बने मुनि को मार सकते क्या? और कोई यदि बोले मैं नहीं मारूंगा, और आपको बोलेंगे अरे हृदय दुर्बल है, ये मानोगे आप ये बात? हाँ, आप मधुसूदन है, आप शत्रु को हत्या करते हैं, क्या क्या करो तुम्हें मोर, आप हृदय दुर्बलता बोल के मुझको आप क्या आदेश करना चाहते हैं? भीष्म द्रोण गुरुजन तारे मारिबा, भीष्म द्रोण जो गुरुजन है उनको मारना और नहीं मानना चाहता हूं, आप मुझको समझा रहा है हृदय दुर्बलता। पूजार योग्य जे तारा हन नित्य काल, तादेरो शरीरे बान सुतीक्ष्ण धाराल। पूजार योग्य जे तारा, ये लोग तो को पूजा करना चाहिए, पैर में फूल देना चाहिए, और उनका छाती में तीर लगाने के लिए बोल रहे हैं। पूजार योग्य जे तारा हर नित्य काल उनका पूजा करना चाहिए, फूल से पूजा करना चाहिए, और तादे शरीर एवं, और उनके शरीर में तीक्ष्ण बाण से युद्ध करना, सुतीक्ष्ण धाराल अस्त्र से आघात करना, ये कैसे हो सकता? और वास्तव में बहुत आदमी, हर आदमी के दादाजी है कि नहीं? सब आदमी के दादाजी है, सब आदमी का गुरु भी नहीं सकते, ज्यादा आदमी गुरु भी है, तो ठीक है, किसी को गुरु को दादाजी के मानना तो पापी है, लेकिन अर्जुन बोलता है दूसरा का दादाजी और हमारे दादाजी के एक हो गया क्या? सबके दादाजी है, लेकिन उनका आदमी के दादाजी और हमारे दादाजी भीष्मदेव दोनों के एक आदमी है क्या? बहुत आदमी का अस्त्र गुरु है, उनका गुरु हमारे गुरु द्रोणाचार्य एक आदमी है क्या? ये केवल गुरुजन नहीं है, ये साधारण गुरुजन नहीं है, ये महान व्यक्ति है। एक तो गुरुजन को नहीं मानना चाहिए, एक भी साथ साथ एक महान व्यक्ति है, साधारण गुरु नहीं है, साधारण गुरुजन नहीं है, महान। শুধু গুরু নহে তারা, মহানুভাব হয় যারা, হত্যা করি তাদেরও সবারে। তদপেক্ষা ভিক্ষা ভালো, কাটিয়া যাইবে কালো, মিথ্যা যুদ্ধ করা ও আমারে। शुद्ध गुरु न है तारा, क्या बोले गुरु और गुरुजन व्यक्ति नहीं है, महानुभाव व्यक्ति है। भीष्म द्रोणाचार्य महानुभाव, और उनको सबको हत्या करने के बोला है। तत् अपेक्षा भिक्षा भालो, इनमें से उनका मारने के बजाय भिक्ष मांगे खाना है अच्छा। काटिया जाइबे काल, काटिया जाइबे काल, हाँ काटिया जाइबे काल था जीवन जापन हो जाएगा।
भीख मांगे हम जीवन निर्वाह कर सकते। निर्वाह शब्द है हिंदी में। इस तरह युद्ध करके राजा होने के बजाय भीख मांगे जीवन बिताएंगे, वो भी अच्छा है। मिथ्या युद्ध करा हमारे, इस तरह फालतू युद्ध आप मुझको क्यों करने के बाद। হত্যাই মহাকাম বিধি যে হইল বাম, এই যুদ্ধে গুরু হত্যা হবে। সেবক রুধির মাখা কেমনে করিব শাখা, সেই যুদ্ধ কে করিয়াছে কবে। अभी मान लीजिए आपको, मान लिया अभी यहाँ कृष्ण समझा रहा है युद्ध कर, अर्जुन इस तरह बोल रहा है, कृष्ण कुछ नहीं बोल रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इतना बात बोल दिया हम महानुभाव, इतना, उसके बाद कृष्ण नहीं बोल रहा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कृष्ण उनका पोजीशन अभी भी अटूट है, उनका डिसीजन चेंज नहीं किया। जब कृष्ण अर्जुन ने इतना अच्छा, इतना लॉजिक दिया है, उसके बाद कृष्ण कुछ नहीं बोला, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण उनका डिसीजन में आर्डिक है। कृष्ण तो अर्जुन समझ गया, मैं जो लॉजिक दिया वो उनको पसंद नहीं हुआ है। अभी दूसरा युक्ति क्या देखेंगे? मैं इतना अच्छा युक्ति दिया है, उसमें किसी नहीं समझ रहा है, तो उनको थोड़ा श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन को निताय की, जगन्नाथ बलदेश्वर महाराज, निशुंभ भगवान, तुम्हें इतना अच्छा युक्ति दिखाया है, उसके बाद कृष्ण कुछ नहीं बोल रहा है, अर्थात अभी उनका डिसीजन में अभी अडिग है, अर्थात उन्हें अभी भी चाहते युद्ध करना है। फिर सोचना मैं गलत के उन्होंने गलत है, तो थोड़ा पहले तो डर नहीं, मैं सही हूं, लेकिन अभी थोड़ा टेंशन है, क्या वास्तव युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डाउट है। तो चिंतन करने लगे। हत्या এই মহাকাম বিধি, পড়া কি इसको नहीं, হত্যা এই মহাকাম বিধি যে হইল বাম, এই যুদ্ধে গুরু হত্যা হবে। ये तो पढ़ चुका ना। हत्या এই महाकाम, इस तरह हत्या है महाकाम, अर्थात काम तो कामना वचन है, महाकामना है, जिसके लिए हत्या करना पड़ेगा, इतना कामना वचन है क्या? गुरु हत्या करके हमें हिंदू तिथि करना चाहिए? महाकाम इस तरह हत्या ही महाकाम विधि जे हईल बा, विधि अर्थात विधाता, विधाता, विधाता अर्थात, विधाता अर्थात ठीक है, विधाता तो समझते हैं, डेस्टिनी विधाता। कभी कभी विधि शब्द ब्रह्मा को बोलते हैं, जो नियंत्रण करते हैं, जिन्होंने नियंत्रण करे, जो जो विधाता है, जिन्होंने नियंत्रण करे। विधि जो होइलो बाम, अर्थात बाम अर्थात, बाम शब्द अर्थात है जिस तरह कृष्ण का दो प्रकार गोप्य है, दक्षिण स्वभाव और वाम स्वभाव। दक्षिण स्वभाव यस सर यस, वाम स्वभाव नहीं चलेगा। दो प्रकार का, तो वाम स्वभाव था नेगेटिव। तो विधि जो हईल वाम था, विधि मेरा प्रति नाराज हो, मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर, उल्टा कुछ। विधि जो है विधाता मेरा प्रति नाराज है, इस तरह युद्ध में क्यों डाला? यही युद्ध गुरु हत्या, विधाता मेरा प्रति इतना नाराज है, इस तरह युद्ध देखिए, मैं क्षत्रिय युद्ध ठीक है मेरे लिए, ठीक है, लेकिन इस तरह मेरा नाराज है तो मेरे गुरु को मानना पड़ेगा इस तरह युद्ध में, इतना विधि मेरा प्रति नाराज। সেবক রুধির মাখা কেমনে করিব শাখা, সে যুদ্ধ কে করিয়াছে কও। इस तरह रुधि शब्द था ब्लड, खून, रुधिर माखा खून से छना हुआ। तो इस तरह युद्ध करके जो राज्य भोग करेंगे वो सारे संपद खून से छना हुआ होगा। तो हम जो वो राज्य को भोग करेंगे अर्थात हम गुरु का खून पीएंगे, इस तरह कामना। सेवक रुधिर माखा কেমনে করিব শাখা, हे शाखा कैसे काम करे,
और इस तरह युद्ध पहले कोई इतिहास में कोई किया? से युद्ध के करिए कब अतीत में कौन ने इस तरह युद्ध किया है? उसके बाद भी कृष्ण कुछ नहीं बोल रहा, इसका अर्थ क्या है? करना ही पड़ेगा तुमको। उसके बाद मुश्किल हो गया। बुझिते पारी ना भालो कोथाय गरिमा हलो कोन कार्य जुआय आमाय। কিবায় আমি জয় করি কিংবায় আমি নিজে মরি দুই নৌকায় আমারে না চায়। बुझते पारी ना भालो, ठीक से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और युद्ध यदि करेंगे कि युद्ध को मारना चाहिए कि जीतना चाहिए। वो कुछ समझ में नहीं। बोले अभी तो मेरा एक तो है युद्ध करना, कृष्ण क्या चाहता है वास्तव, क्या मुझको टेस्ट करना चाहता है क्या अर्जुन कितना लालची है, गुरु को मारना चाहता है युद्ध करने के लिए, क्या कृष्ण उसको टेस्ट करना चाहता है क्या, परीक्षा कर रहा है क्या? और फिर यदि चाहते हैं युद्ध करना है तो कृष्ण क्या चाहता है कि मैं इसको मरूं कि जीतूं क्या? तो ये इतना सिद्धांत नहीं। बुझिते पारी ना भालो कोथाय गरिमा, मैं समझ में क्या गलती का है, कौन कार्य जुआ है मेरे लिए, जुआ था जो कौन सा करना चाहिए। কিবা আমি জয় করি, मुझको जय करना चाहिए, কিবা আমি নিজে मरी कि मैं मरूंगा उधर में। दुई नौका हमारे नाच, अभी तो युद्ध करेंगे, मेरा भी डिसीजन ठीक नहीं, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, युद्ध जयलाभ करना चाहिए कि हारना चाहिए, मेरा वही पता नहीं। दो नाव में पैर देने से क्या होता है? हाँ, दो नाव में पैर देने से क्या होता है? कुछ एक नाव में पैर दे, जो समझ गया मेरा दो नाव में पैर है, एक नाव में पैर देना चाहिए, अभी एक करना चाहिए। যাদেরও মারিয়া রণে বাঁচি বসে অকারণে তারা সব আমারও সম্মুখে। ধার্তরাষ্ট্রপুত্রগণ আর যত বন্ধুজন মরিলে সে হবে মর দুঃখ। যাদের মারিয়া রণে বাঁচি বসে অকারণে, जिसको मरकर मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, जिसको मारना ही नहीं चाहता हूं, और वो व्यक्ति मेरा सामने में आया युद्ध करने के लिए, और जो धृतराष्ट्र के पुत्र सब मेरा बंधु है, ये लोग तो मारना तो दूर की बात है, वो यदि मारेगा उसी में दूसरा आदमी उनको मारेगा, दूसरा आदमी उनको मारेगा तब मेरा दुख होगा। वो यदि कोई काम में मर जाएगा वो मेरा दुख होगा, और मैं मारूंगा तो उसका तो सुख का। अर्जुन कहता है ये हमारे इतना बड़ा मित्र है, उन्होंने यदि मर जाएगा तो मेरा दुख होगा, दूसरा आदमी मारेगा तभी भी दुख होगा। जो आदमी को दूसरा आदमी मारने से हमें दुख होगा, वो आदमी को खुद ने कैसे मार सकते? मरिले जो हमें मोर दुख। कार्पण्य दोषेते दोषी मोहेते होयेछि बशी ससबा भलो अपहत। নিজ ধর্ম ছাড়ি মুর জিজ্ঞাসি তোমারে দৃঢ় কৃপা করি করহ সংযত। उसके बाद भी कृष्ण कुछ नहीं बोला है। जब बोला युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए, उसके बाद कृष्ण कुछ नहीं बोला। इसका अर्थ क्या है? मैं बार बार नहीं बोल सकता, जो एक बार बोल दो वही सही है। बार बार इतने बड़ा नाटक करने का समय नहीं है, मैं जो बोला युद्ध करो करो। ये अर्जुन ने समझ गया, वो उनका डिसीजन से। अभी पहले तो सिद्धांत ही नहीं था करना चाहिए कि नहीं, अभी उसके बाद भी कृष्ण तब उन्होंने अभी पूर्ण शरणागत। कार्पण्य दोषे तो दोषी मोहित हुए ग्रेजुअल धाप धाप उनका शरणागति हो रहा है। पहले तो बहुत जीता, युद्ध नहीं करेंगे जुक्ति देकर है, बाद में थोड़ा सिद्धांत लेता है, अभी सोच नहीं मैं गलत हूं, अभी पूर्ण शरणागत। कार्पण्य दोषे थे दोषी, कार्पण्य अर्थात कंजूसी के कारण।
कार्पण्य दोषे ते दोषे कृपणता कंजूस के कारण ये दोष के द्वारा मैं दुष्ट हूं। दोषे दोषी अर्थात ये दोष के द्वारा दुष्ट। कार्पण्य शब्द अर्थ क्या है? कंजूस क्या है? कंजूस और एक शब्द कंजूस अर्थ जो कंजूस शब्द अर्थ क्या? हाँ, कंजूस तो माइज शॉर्ट साइड, ठीक है। और वास्तव में कंजूस अर्थ क्या है? हाँ, जिसको पास मूल्यवान वस्तु उनको इस्तेमाल नहीं जानते, खास बात है। कंजूस क्या करते हैं? पैसा भी खाएगा नहीं तो जिसके पास मूल्यवान वस्तु है उसको इस्तेमाल नहीं करते। मानो आपके पास 20 किलो सोना है घर पे, खर्चा नहीं करते, भीख मांगे खाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो खर्चा करेंगे नष्ट हो जाएगा। भीख मांगे तो खाना तो चाहिए केवल। कोई दुकान में जाएगा, कोई रोटी दे खाओ, पैसा क्यों नष्ट करते हैं? तो कंजूस यह हमारे अंदर क्या है? शरीर और आत्मा। हमें मूल्यवान वस्तु क्या है? आत्मा है। तो आत्मा को ध्यान ही नहीं है, चिंतन कर रहा है शरीर का। तो शरीर, शरीर और आत्मा है। जो आत्मा जो मूल्यवान वस्तु है वह से परमात्मा को खरीद कर ले सकते, भगवान को दाज बांध के भगवान को भक्त कर सकते, लेकिन वो वस्तु को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, केवल चिंतन करा शरीर। इसीलिए कंजूस शब्द का अर्थ है देहात्म। कंजूस शब्द का अर्थ है देहात्म। इसको प्रभात तात्पर्य में क्या बताया? ये देहात्म बुद्धि को स्किन डिजीज, चर्म रोग। क्यों? चर्म रोग अर्थात मेरा त्वचा स्किन और तुम्हारी स्किन एक भारतवर्ष में जन्म हुआ है, इसीलिए हमारे भारतीय भाई। ये कनेक्शन कैसे? स्किन के साथ। तुम और मैं भाई भाई, क्योंकि एक ही पिता से तुम्हारी स्किन और मेरा स्किन मिल गया है, तो ये हमें कनेक्टेड कैसे? स्किन के साथ। इसीलिए डिजीज का नाम है स्किन डिजीज। तो ये देहात्म बुद्धि का नाम है स्किन डिजीज। और एक डिजीज है, कौन सा? हार्ट डिजीज। हृदय में बहुत सारे कामना वासना, ये दो बहुत मुश्किल हो गई। कार्पण्य दोषेते दोषी मोहित हुए बस। तो अर्जुन बोलते हैं ये कंजूसी के कारण, ये दोष के दुष्ट होने के कारण मैं मोहग्रस्त हूं। स्वभाव हलो आप, स्वभाव, स्वभाव अर्थात स्वभाव, खुद का भाव। खुद का भाव क्या है? अर्जुन का भावना युद्ध करना है, लड़ना, क्षत्रिय। तो युद्ध करने की इच्छा ही नहीं है। तो स्वभाव, खुद का जो क्षति करना स्वभाव है, लड़ना है, पराजित करना, वो रुचि नहीं है। अपहत, अपहत था चलेगी। तो ये कंजूसी के कारण मेरा अंदर वो युद्ध करने का जो स्वभाव है वो चलेगा। इसीलिए मैं निज धर्म छाड़ी मोरो जिज्ञासी तुम्हारे दृढ़ कृपा करी करो। इसलिए मैं निज धर्म छाड़ी मूरो, मैं मूर्ख हूं। मैं इतना मूर्ख हूं, मैंने खुद का धर्म क्षत्रिय युद्ध करो छोड़ दिया। इसीलिए मैं आपको जिज्ञासा पूछ रहा हूं, कृपा करी करो, मुझको कृपा कीजिए, मुझको उपदेश दीजिए। তুমি জানো হিত মোর হয়েছি মোহেতে ভোর, ভালো যাতে করহ বিচারে। হইন তোমার শিষ্য দেখুক সকল বিশ্ব, শিক্ষা দাও এই প্রপন্নরে। अभी इतना शरणागत हो गया है, तुम्हें जाने हित मोर, कृष्ण आप जानते हैं मेरा कैसे मंगल हो। होएची मोहित भोर, मैं तो मोहग्रस्त हो गया। मोहित भोर अर्था, भोर अर्था, भोर अर्था
ये भोर ये बांग्ला से हिंदी में नहीं, मोहित भोर अर्थात मोहग्रस्त, जिसका नेशा में भोर हो गया, नेशा करके वो और पता नहीं वो दुनिया में कहा है, उसका नेशा में चूर चूर उसका उसका भोर। तो यह मोहित भोर ये मोहित भोर मोहग्रस्त, भालो जाते करो विचार, अभी मेरे लिए जो कौन सा अच्छा होगा, मैं मोहग्रस्त हो गया हूं, मेरा पता नहीं है मेरे लिए मंगल क्या, इसीलिए आप मुझको होइनु तुम्हार, मैं आपको शिष्यत्व वर्ण किया, देखो सकल विश्व सारा दुनिया देख सकते अर्जुन और कृष्ण बंधु है, लेकिन अभी अर्जुन एक बंधु के पास आत्मसमर्पण के गुरु रूप में सिखा रहे, खुद ने शिष्य बने, शिक्षा दाओ यही प्रपन्ना, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, आप मुझको बुद्धि। ये भगवत गीता प्राप्त ज्ञान प्राप्त ये मनोभाव होना चाहिए। यदि इस तरह मनोभाव नहीं होगा, इतना दिन एक साथ रहते थे, कभी भगवत गीता का दिया नहीं, बंधु बांधव में कितना खेल कूद किया है, लेकिन गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि इस तरह भावना को भी आए, जब तक शिष्य रूप में स्वीकार किया नहीं खुद को, तब तक कृष्ण भगवत गीता को दिया। उसी तरह हम भी भक्तों के साथ बहुत दिन से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन हम शरणागत नहीं, हमको कभी हाँ उपदेश देंगे, उपदेश लेने के लिए हमें शरणागत होना पड़ेगा। देखी ना आमी जे अंध ताहे बुद्धि अति मंद, शोकानल निर्विवेकी भावे, যে শোক জ্বালায় মোরে ইন্দ্রিয়াদি সব পরে, ভবরোগ কিরূপে ঘুচাবে। देखी ना आमी जो अंध ताहे बुद्धि अति मंद, मैं अंधा हूं, केवल बुद्धि में अंधा नहीं, केवल आंखों में अंधा नहीं, यह होता बुद्धि में अंधा। शोकानल निर्विवेकी, अभी मेरा जो हृदय में शोक का आग जला है, कैसे बुझेगा मेरा पता नहीं। जे शोक जलाए मोरे इंद्रिय आदि सब पड़े, जो शोक मुझको जला रहा है और सारी इंद्रियों जल रहे होगा, ये भवरोग की रूप में। अभी जो यद्यपि वो श्लोक में किया है 8 नंबर श्लोक, नहीं प्रपश्यमि ममानुबुद्धा यत्शोकम उच्छ्वसनम इंद्रिया नाम अवाप्य भूमौ अशपत्न रिद्धाम राज्यम शुरानाम अपि चातिपति। लेकिन वो भवरोग के बात बताया नहीं, भवरोग शब्द है, लेकिन वास्तव में असली बीमारी है भवरोग। यह प्रभुपाद कहते हैं, जे शोक জ্বালায় मोर इंद्रियादि सब परे भवरोग की रूप कुछ। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा वर्णन दिया है यह श्लोक में। क्यों यहां हमें क्या देखते हैं, देखी ना आमी जो अंध ताहे बुद्धि अति मंद, शोकानल निर्विवेकी भाव, যে শোক জ্বালায় মোর इंद्रियादि सब परे भवरोग की रूप कुछ। उसका आगे 2 लाइन पढ़ेगा और परिष्कार हो जाएगा। যদি পাই ত্রিভুবন রাজ্য লক্ষ্মী সুলভন, অসপত্ন রাজ্যের বিকাশ, দেবলোকে আধিপত্য তোমাকে কহিনু সত্য, নাহি হবে এসো কবিনাশ। যদি পাই त्रिभुवन, केवल हस्तिनापुर के राजा नहीं, त्रिभुवन का यदि राजा बनाएंगे, राज्य लक्ष्मी शिलोभन, राज्य लक्ष्मी शिलोभन अर्थात स्वयं इतना धन संपद होगा, लाग रहा है स्वयं लक्ष्मी देवी विराज कर रहा है। तो त्रिजगत का राजा लक्ष्मी देवी स्वयं विराज कर रहा है। अशपत्न राज्य विकास, अशपत्न अर्थात शत्रु मुक्त, सपत्न, सपत्न अर्थात शत्रु, अशपत्न अर्थात शत्रु मुक्त। तो यदि मुझको त्रिभुवन का राजा बना देंगे और लक्ष्मी देवी स्वयं विराज करेंगे, एक भी शत्रु नहीं, देवलोक के आधिपत्य देवता का यदि राजा बना देंगे, उसके बाद भी
তোমাকে কহি নিষেধ नहीं হবে ये शोक विनाश, उसके बाद भी मेरा ये दुख नाश नहीं होगा। क्यों? क्या चाहिए? यदि आपको ये 3 ऑप्शन देगा, इस तरह चीज, त्रिभुवन का राजा, राज लक्ष्मी देवी स्वयं विराज करेंगे, सारे सुख सुविधा, शत्रु नहीं है, देवता का राजा बन लो, और समस्या क्या है? समस्या क्या है? क्या समस्या? थोड़ा बुद्धि खटे, क्या समस्या? हाँ हाँ, देखने वाला नहीं। ओके, और कोई? और कोई? हाँ, अध्यात्म बुद्धि। ओके, उसके पहले में भावरोग की रूप घोचे। मेन तो रोग भावरोग है। क्या जन्म मृत्यु चक्र के बंद कर सकते हैं? अभी सब कुछ मिला है, कल कोरोना का मर जाएगा तो तब क्या होगा? ये सब कुछ मिला है, कल कोरोना हो गया, सीटी स्कैन करके देखा पूरा 2 लाख चले गया, तो ये चीज मिल क्या फायदा है? तो वही बात ये पूर्व तात्पर्य में कहते हैं। ये इसीलिए पूर्व दिया भावरोग की रूप है। कितना पूर्व एक लाइन में तात्पर्य दिया इसके अंदर। यह पढ़ने के लिए पूरा तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा गीता में पूर्वपात का, लेकिन ये एक शब्द में दिया। वास्तव में इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हमें भावरोग तो घुसेगा नहीं, तो उस तरह संपदा का जरूरत क्या है? तो असली संपद फिर कौन सा? असली संपद कौन सा? भावरोग कैसे घुसे? तो गुरु के पास इसीलिए जाना चाहिए। गुरु के पास इस तरह नहीं त्रिभुवन का राजा बने, धन संपद मिले, शत्रु मुक्त राज्य मिले, देवलोक का अधिपति बने, नहीं। गुरु के पास जाना चाहिए भवरोग के रूप में घुचिबे, इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। यह अर्जुन कितना अच्छा शिक्षा दे रहा है। बस पूरा सरेंडर अभी भगवत गीता अभी ये चीज संजय संजय राय संजय এবার রিলে করা है ধৃতরাষ্ট্র। সে কথা বলিয়া গুরা কেশ পরতাপী, সঞ্জয় কহিল, সে কথা বলিয়া গুরা কেশ পরতাপী, ঋষিকেশে নিবেদিল যদিও প্রতাপী। ये बात बोलकर गुराकेश अर्जुन, हाँ, गुराकेश अर्जुन ऋषिकेश को कहा। यह दोनों शब्दों का अर्थ पूर्व तात्पर्य बहुत वर्णना किया। अच्छा, भगवदगीता पढ़ लेना। निवेदिल यदिओ प्रतापी, यद्यपि इतना शक्तिशाली है, सत्य को पराजित कर सकते, लेकिन इतना शक्तिशाली व्यक्ति फिर भी शिष्य बन। और क्या बोलने लगे? हे गोविंद मोर द्वारा युद्ध नहीं हवे, युद्धचारी সেই বীর রহিল নীরবে। ये बोलने के बाद, शिष्यत्व बढ़ने के बाद, गोविंद, हाँ, मेरा द्वारा आज युद्ध नहीं होगा, यह बोलकर, यह भी गोविंद शब्द क्यों, गोविंद शब्द क्यों बताया? गोविंद अर्थात, गोविंद शब्द अर्थात जो इंद्रियों को आनंद देते हैं। तो ये गोविंद, आप मुझको, मैं दुखी हूं आप मेरे इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला है। वो युद्ध सरकार उन्होंने नीरवे, युद्ध से भी रहिलो नीरव। तब यह सुनकर कृष्ण क्या कर रहा है? हो इससे हंसा क्या? नहीं, खुशी तरह हुआ है, लेकिन अट्टहासी नहीं। अट्टहासी देना अर्थ क्या है? एक प्रकार ताच्छिल्य करना, अपमान करना। लेकिन मुस्की हंसी देना, मुस्की हंसी शब्द है मुस्काना, मुस्काना वो हंसी अच्छा है, खुश होना, मुस्काना तो खुश होना। ये अट्टहासी देना है, एक प्रकार उनको उपहास करना। इसीलिए कृष्ण ने मुस्की हंसी दी, स्निग्ध हंसी, वो मिष्टी मिष्टी हंसी। स्निग्ध हासि मनोहर ऋषिकेश बोले, हे भारत अर्जुनेर शुनिया सकले। इस तरह तब ऋषिकेश बहुत मृदु हंसी से, हे भारत अर्थात, हे भारत अर्थात धृतराष्ट्र को बोल रहा है। अर्जुन का इस तरह बात सुनकर मीठे सुर से हंसते हंसते ये बात कहा।
कौन सा? पूरा भगवत যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য মধ্যে হাসিয়া হাসিয়া উপদেশ করেন গীতা বিষণ্ণ দেখিয়া। সংস্কৃত ছিল কি? হাসিয়া হাসিয়া। প্রহসন নিব ভারত সেনার উভয়ের মধ্যে বিশিদন্ত নিদম্ব ছিল। তো ইহা উপদেশ করেন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যের মধ্যে হাসিয়ে হাসিয়ে, हंसते हंसते बहुत प्रेम से आनंद के साथ उपदेश करें गीता विषण्ण। उनका उपदेश गीता का उनका विषण्ण देखकर उसके बाद भगवत गीता चालू काल से। हरे कृष्ण। भगवत गीता गान, गीतार गान, यह क्लास समाप्त। देखिया अर्जुने कृष्ण সেই অশ্রু জলে দেখিয়া কৃপায়াবিষ্ট হয়ে ভাবিত বিকলে কৃপাময় মধুসূদন কহিল তা হরে কৃপাময় ইতি বাক্য বন্ধু ভাবে অতি মিষ্ট স্বরে শ্রী ভগবান কহিলেন কিভাবে অর্জুন তুমি গৌর যুদ্ধ স্থলে অনার্যের শোকানল প্রদীপ্ত করিলে অকীর্তি অসর গোলাপ হইবে তো মা ছি বন্ধু ছাড়ো এ অযোগ্য আচার নপুংসক নহ পার্থ একই ব্যবহার যোগ্য নহে এ কার্য বন্ধু যে আমার
হৃদয় দুর্বল এই নিশ্চয়ই যা নিবে ছাড়ো এই করযুদ্ধ যদি শত্রুকে মারিবে অর্জুন কহিল মধুসূদন কি আজ্ঞা করো তুমি মোরে ভীষ্ম দ্রোণ গুরুজন তারে মারিবারে পূজার যোগ্য যে তারা অননিত্য কাল তাদেরও শরীরে বা সুতীক্ষ্ণ ধারা শুধু গুরু নহে তারা মহানুভব ভয় যারা হত্যা করি তাদেরও সবারে হত্যা করি তাদেরও সবারে হত্যা করি তদপেক্ষা ভিক্ষা ভালো কাটিয়া যাইবে কালো তদপেক্ষা মিথ্যা যুদ্ধ করাও মারে মিথ্যা যুদ্ধ করাও আমারে হত্যা এই মহাকাম বিধি যে হইল বা এই যুদ্ধে গুরু হত্যা হবে এই যুদ্ধে গুরু হত্যা হবে
সেব গরু দৃঢ় মাখা কেমনে করিব সখা সেব গরু সে যুদ্ধকে করিয়াছে কবে সে যুদ্ধকে করিয়াছে কবে বুঝিতে পারি না ভালো কোথায় গরিমা হলো কোন কার্য জুয়ায় আমায় কোন কার্য জুয়ায় আমায় কিংবা আমি জয় করি কিংবা আমি নিজে মরি কিংবা দুই নৌকা আমারে না চায় দুই নৌকা আমারে না চায় যাদের মা রিয়ারণে বাঁচিব সে অকারণে তারা সব আমার সম্মুখে তারা সব আমার সম্মুখে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগান আর যত বন্ধু যান ধৃত মরিলে সে হবে মোর দুঃখ মরিলে সে হবে মোর দুঃখ কার্পণ্য দোষেতে দোষী মোহেতে হয়েছি বশী স্বস্বভাব হলো অপহত স্বস্বভাব হলো অপহত
নিজ ধর্ম ছাড়ি মুর জিজ্ঞাসিত মারে দৃঢ় নিজ কৃপা করি করহ সংযত কৃপা করি করহ সংযত তুমি জানো হিত মন হয়েছি মোহেতে ভোর ভালো যাতে করো বিচারে ভালো যাতে করো বিচারে হইনু তো মারো শিষ্য দেখু কষ কল বিশ্ব শিক্ষা দাও এই প্রপন্ন রে শিক্ষা দাও এই প্রপন্ন রে দেখি নায়া মিজে অন্ধ তাহে বুদ্ধি অতি মন্দ শোকানল নিবিবে কি ভাবে শোকানল নিবিবে কি ভাবে যে শোক যা লায় মোরে ইন্দ্রিয়াদি সব পরে যে শোক ভব রোগ কিরূপে ঘুচাবে ভব রোগ কিরূপে ঘুচাবে যদি পাই ত্রিভুবন রাজ্য লক্ষ্মী সুলভ অসাপত্ন রাজ্যের বিকাশ অসাপত্ন রাজ্যের বিকাশ
দেবলোকে অধিপত্য তোমাকে কহিনু সত্য দেবলোকে নাহি হবে এসো কবি নাশ নাহি হবে এসো কবি নাশ সঞ্জয় কহিল সে কথা বলিয়া গুড়া কেশ পর তাপি সে কথা বলিয়া গুড়া কেশ পর তাপি ঋষিকেশে নিবেদিল যদিও প্রতাপী ঋষিকেশে নিবেদিল যদিও প্রতাপী হে গোবিন্দ মোর দ্বারা যুদ্ধ নাহি হবে হে গোবিন্দ মোর দ্বারা যুদ্ধ নাহি হবে যুদ্ধ ছাড়ি সেই বীর রহিল নীরবে যুদ্ধ ছাড়ি সেই বীর রহিল নীরবে স্নিগ্ধ হাসি মনোহর ঋষিকেশ বলে স্নিগ্ধ হাসি মনোহর ঋষিকেশ বলে হে ভারত অর্জুনের শুনিয়া সকলে হে ভারত অর্জুনের শুনিয়া সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য মধ্যে হাসিয়া হাসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য মধ্যে হাসিয়া হাসিয়া উপদেশ করেন গীতা বিষণ্ণ দেখিয়া উপদেশ করেন গীতা বিষণ্ণ দেখিয়া ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রী গীতার গান শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम